بھارت کا ماورائے عدالت قتل کا نیٹ ورک اب عالمی سطح پر پھیل چکا۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی خبروں نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی میڈیا بریفنگ، کہا کئی دہائیوں سے بھارتی ایجنسی را جنوبی ایشیا میں اغوا اور قتل کی وارداتوں میں سرگرم ہے۔ دسمبر 2022 میں پاکستان نے لاہور حملے میں بھارت کے ملوث ہونے کے شواہد دیے تھے۔ 2016 میں بھارتی فوجی کمانڈر پاکستان سے پکڑا گیا۔ کلبھوشن یادیو نے تخریب کاری میں ملوث ہونے کا اعتراف بھی کیا۔ بھارت کی جانب سے کینیڈین شہری کا قتل عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کا ہاتھ، بین الاقوامی سطح پر مودی سرکار کے خلاف گھیرا تنگ۔ 5 اہم ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھارت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ گئیں۔ امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے تحقیقات کی حمایت کر دی۔ امریکہ کی بھارت سے تحقیقات میں تعاون کی اپیل۔ کینیڈین وزیر اعظم نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا کینیڈا کی سرزمین پر سکھ رہنما کا قتل انتہائی سنگین ہے، اس کے دور رس نتائج ہوں گے۔ بھارتی حکومت معاملے کو سنجیدہ لے۔ Pakistan, the biggest concern right now is the enhanced terrorist threat from TTP and ISK and their ability to use Afghan soil for launching attacks against Pakistan. افغان سرزمین سے پاکستان پر دہشت گرد حملے باعث تشویش ہیں۔ دہشت گرد ایک بار پھر افغانستان پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نیو یارک میں ایشیا سوسائٹی کی تقریب سے خطاب، کہا خطے کے دیگر ممالک اور عالمی برادری اس سنگینی کا نوٹس لیں۔ پاکستان مقبوضہ کشمیر سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے پرامن مذاکرات کا حامی ہے۔ چین اور امریکہ سے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں۔ سی پیک منصوبہ پاک چین مضبوط تعلقات کی بہترین مثال ہے۔ رواں مالی سال الیکشن سے پاکستان کی معیشت سنبھل سکتی ہے۔ معاشی ایڈجسٹمنٹ پروگرام پر عمل سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھے گا۔ درآمدات پر رکاوٹوں میں نرمی سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی تجاویز پیش کر دی۔ رواں مالی سال معاشی شرح نمو 1.9% رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ رپورٹ میں کہا گزشتہ مالی سال سیاسی عدم استحکام اور سیلاب کے باعث مہنگائی اور کم شرح نمو رہی۔ پائیدار ترقی کے لیے کمزور ممالک کو وسائل فراہم کرنا ہوں گے۔ قرض میں جکڑے ملکوں کے لیے لاہ عمل تیار کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا نیو یارک میں مباحثے اور کانفرنس سے خطاب، بین الاقوامی برادری کو موسمیاتی تبدیلی سے تباہی پر کیا گیا وعدہ بھی یاد دلایا۔ کہا چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اقدام اور سی پیک پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول میں اہمیت کا حامل ہے۔ ایرانی صدر سے 2 طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نگراں وزیر اعظم جمعے کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ آئی ایم ایف نے نگراں حکومت کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف دینے سے روک دیا۔ موقف اپنایا، بجلی بلوں میں ریلیف دیا تو سرکولر ڈیٹ کم نہیں ہوگا۔ ذرائع کے مطابق 200 یونٹس والے صارفین کو صرف بلز کی ادائیگی مؤخر کرنے کا وقتی ریلیف ملے گا۔ 10% سرچارج عائد نہیں ہوگا۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی 200 یونٹ سے تجاوز پر ریلیف نہیں ملے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے اندرونی معاملات میں اور انتخابات کروانے میں مکمل خود مختار ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نومبر کے دوسرے ہفتے میں شیڈول جاری ہو جائے گا، اور شیڈول جاری ہونے کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 15 سے 25 جنوری کے درمیان ہونے کے امکانات نظر آ رہے ہیں۔ 15 سے 25 جنوری کے درمیان انتخابات متوقع ہیں۔ نومبر کے دوسرے ہفتے میں انتخابی شیڈول جاری ہو جائے گا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کنور دلشاد کہتے ہیں صوبائی حکومت بالکل نیوٹرل ہے، کسی سیاسی معاملے میں ملوث نہیں۔ حکومت الیکشن کمیشن کی مکمل معاونت کرے گی۔
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दुबई पहुंच गए। 5 रोज कयाम करेंगे। कल बहनों के साथ अपनी सालगिरह मनाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में पार्टी मामला देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्त एतराजात के साथ वापस कर दी। वकील इनामुर रहीम ने पीटीआई दौर में होने वाली ट्रायल्स कालादम करार देने की इस्तदा की थी। अदालत ने अपने एतराज में कहा, दरखास्त गुजार केस के अवामी अहमियत का होने का नुक्ता उजागर नहीं कर सके। बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने की वजूहात भी नहीं बताई गई। महकमा इत्तलात सिंध में 6.25 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस। शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान के खिलाफ केस जहां रुका था वहीं से शुरू होगा। कराची की एहतसाब अदालत ने अदालत के दायरा इख्तियार से मुतालिक मुल्जिम सलमान मंसूर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने कहा, अब तो नैब तरामीम खत्म कर दी गई हैं। कल सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मिला है, अहकामात पर अमल किया जाएगा। आइंदा समाअत पर गवाहान और मुल्जिमान को पेश होने का हुक्म। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। लाहौर में नून लीग का दफ्तर और कंटेनर जलाने का केस। सेनेटर एजाज चौधरी 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत की मुल्जिम को जेल में ही रखने की हिदायत। जज अभर गुल ने कहा, एजाज चौधरी की तबीयत नासाज है, पुलिस जेल में ही अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। पंजाब में क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। हुकूमत ने शुगर मिलों को हिदायत जारी कर दी। शुगर मिल्स ने 28 नवंबर तक का वक्त मांग लिया। बरवक्त क्रशिंग शुरू न होने पर चीनी की कीमत मजीद बढ़ने का खदशा। मुकर्ररा वक्त पर क्रशिंग से चीनी की कीमत 140 रुपए से नीचे आने का इम्कान है। कैन कमिश्नर्स का मौकफ है, इस बार मिल्स मालिकान का कार्टल कामयाब नहीं होने देंगे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। साइट एरिया, नाजमाबाद, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, कायदाबाद में बारिश, हसन स्क्वायर और चंद इलाकों में बूंदाबांदी। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी आज बारिश की पेश गोई। दो माह कबल कश्मीर से अगवा किए गए सागर कुमार को बाजियाब करवा लिया गया। एसएसपी कश्मीर का कहना है, रेंजर्स की मदद से सब मुखबियों को बाजियाब करा लेंगे। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज आईजी सिंध के साथ कच्चे के इलाके पहुंच गए। कहते हैं, धरनों की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी पूरी करेंगे। डाकू को खत्म करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेंगे। हथियार डालने वालों के साथ कानून के मुताबिक डील करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली कि हम 2 अक्टूबर को 100 मुकामात पर सड़कों पर एहतजाज करेंगे। लाहौर के गवर्नर हाउस पे धरना जारी है, लाहौर में धरना है। 6 अक्टूबर को कराची में बड़ा धरना होगा, जाने के लिए नहीं बल्कि बैठने के लिए होगा। कराची में 2 अक्टूबर को 100 मकामात पर एहतजाज होगा। 6 अक्टूबर को धरना होगा जो मुतालबात की मंजूरी तक जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, डॉलर अगर 30 रुपए तक कम हुआ है तो इसका असर पेट्रोल पर फौरी आना चाहिए था। अगर ऐसा नहीं तो आईएमएफ की गुलामी की वजह से यह कठपुतली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। आईएमएफ टैक्स जमा करने का कहता है तो जागीरदारों को टैक्स के लिए छूट दे दी जाती है। कराची के इलाके बफर जोन में गार्ड की फायरिंग से 7 साला बच्ची की मौत। सिक्योरिटी कंपनी गार्ड से बरामद होने वाला असलहे का लाइसेंस पेश न कर सकी। तैमूरिया थाने में गिरफ्तार मुल्जिम के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक सिक्योरिटी कंपनी से मुतालिक डीआईजी को खत भी लिख दिया है। जामिया कराची में तनख्वाहों की अदम अदाई पर असातिज़ा का एहतजाज। 7वें दिन भी क्लासेस मुअत्तल। असातिज़ा का कहना है, तनख्वाहों की अदम अदाई संगीन मुआशी मसाइल का सबब बन चुकी है।
यूएई ने पाकिस्तान से समंदरी रास्ते गोश्त की इंपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक 10 अक्टूबर तक होगा। कराची की एक कंपनी के कंटेनर से गोश्त में फंगस पाया गया था। समंदरी रास्ते से माहाना $12 मिलियन का गोश्त एक्सपोर्ट होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अफगान खातून के सियासी पनाह के हक को तस्लीम करते हुए तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने खातून के पास पाकिस्तानी वीजा न होने के इल्जाम के तहत दर्ज मुकदमा खारिज करने का हुक्म दिया। फैसले में कहा, अफगानिस्तान में राहील अजीजी की जान को खतरात लाहक थे, वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीजा दे चुकी है। पाकिस्तान में दर्ज मुकदमे की वजह से अफगान खातून ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकी। पाकिस्तान में 15 लाख बच्चे सड़कों पर लावारिस मौजूद हैं। हमने 5 साल में 5000 से ज्यादा बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की चेयरपर्सन सारा अहमद का अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीब से खिताब। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का बच्चों के लिए मुंतखब करदा आलमी दिन बहुत अहमियत का बाइस है। तमाम मुल्कों को बच्चों पर तशद्दुद और इस्तेहसाल से बचाव के लिए मिलकर काम करना होगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। शहर भर की मसाजिद, घरों और बाजारों को सजाने की तैयारियां जारी। महफिल मिलाद के इनेकाद के साथ साथ जुलूस भी निकाले जाएंगे। आदाब मजलिस नहीं जानते तो बाहर निकल जाओ। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी सदर की तकरीर के दौरान शोर शराबा करने पर इस्राइल के सफीर को बाहर निकाल दिया गया। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने इस्राइली सफीर की हरकत का नोटिस लिए बगैर अपनी तकरीर जारी रखी। सिक्योरिटी अहलकारों ने इस्राइली सफीर को हिरासत में लेकर असेंबली से बाहर निकाला। अजरबैजान का निगोरोनो काराबाख में मुकामी दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन, 27 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी, 7 आज़री फौजी भी शहीद हुए। अजरबैजान की फौज ने 60 जंगी पोस्ट्स पर कंट्रोल हासिल कर लिया। आज़री हुकाम का कहना है कि आर्मेनियाई अलहदगी पसंद होश में आ जाएं, गैर कानूनी हुकूमत खत्म करके हथियार डाल दें। तुर्क सदर का कहना है काराबाख अजरबैजान का हिस्सा रहेगा। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और इंशाह अफरीदी शादी के बंधन में बंध गए। तकरीब कराची में हुई। क्रिकेट स्टार और दीगर शख्सियात की शिरकत। कप्तान बाबर आजम तवज्जो का मरकज रहे। वलीमा कल इस्लामाबाद में होगा। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने बेटी की रुखसती पर खूबसूरत शेर और तस्वीर शेयर कर दी। विकेट पर घास, कम से कम 70 मीटर की बाउंड्री और टॉस का अमल दखल। आईसीसी ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए क्यूरेटर्स को प्रोटोकॉल जारी कर दिए। गुज़िश्ता 3 आईसीसी वर्ल्ड कप मेजबान मुल्कों ने अपने नाम किए। आईसीसी इस बात को यकीनी बनाना चाहता है कि होम टीम ज्यादा फायदा ना उठा सके। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग रिलीज कर दिया गया। वर्ल्ड कप तराने का नाम दिल जश्न बोले रखा गया है, जिसमें भारतीय अदाकार रणवीर सिंह भी जलवा कर। आलमी कप का आगाज 5 अक्टूबर को होगा। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो तमाशा 2 कौन जीतेगा? उमर शहजाद, जुनैद जमशेद नियाजी, फैजान शेख, नेहा खान या फिर उर्वा मिर्जा, 5 फाइनलिस्ट्स में मुकाबला। तो अभी वोट करें अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को AIY ज़ैप पर और देखना ना भूलें तमाशा सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले हफ्ता 23 सितंबर सिर्फ AIY डिजिटल पर।